जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज 23 दिसंबर 2021 अभिनीति 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये दिन लाए आपके जीवन में इतनी खुशियां, इस दिन की कभी शाम ना हो। Good afternoon to honorable teacher and to all my respected teachers, and I would like to request to felicitate our teacher by giving beautiful bouquet. आज की इस रंगारंग शाम में गेम्स, परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग, सोलो सिंगिंग, डांसिंग आज की शाम यादगार होने वाली है। और अंत में जो हम सभी को इंतजार है, मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर, मिस्टर चार्मिंग एंड मिस एलोनी, वो घोषित किए जाएंगे। ऑलराइट, सभी लोग अपनी सीट्स ले लीजिए। तो हम यहाँ पर अपना पहला परफॉर्मेंस से अपना फ्रेशर्स पार्टी 2020 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभिनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्यों ना सबसे पहले भांगड़ा हो जाए। भांगड़ा से हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो जोरदार तालियां निशांत मंदिरत्ता एंड शिवम सिंगल के लिए। Yellow, but it's all in a messy Chinese.
खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस न बैठिए, खुलकर हंसिए और आनंद लीजिए। A warm welcome to all of you present here. और warm welcome को होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर ठंड है। किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले हमें एक दूसरे को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे जूनियर भी हमारी स्कोवर्स फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भी जान लेना बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है। So I request Batch 2020 to introduce them on stage. Good evening everyone. Myself Tarun Kaushal. I am from Bijnore and my hobby is writing poetry. Also, I like to watch some Netflix web series. That's all. That's all I want to say. Thank you. Good evening everyone. Myself Banu Pratap Singh. I am from Aligarh and my hobbies are playing cricket, kabaddi and many more. Thank you. Good evening everyone. My name is Naman Tyagi. I am from Devan. My hobbies is bodybuilding. Thank you. Very warm greetings to everyone present here. Myself Ashutosh Sharma. I am from Manipuri and my hobby is singing. Thank you. Good evening to everyone present over here. Myself Kirti Anand. I am from Karnal, Haryana and my interest is in nature photography. Thank you. Good evening everyone. My name is Prithvish Kumar and I am from Unnao. My hobbies are watching movies and traveling. Good evening everyone. Myself Pushkar Thakur. I am from Kanpur. My hobby is travel to explore new things. Good evening everybody. Myself Abhishek Kumar and I am from Bijnore and my hobbies are playing volleyball and travel. Thank you. Good evening everyone. Myself Ankur Guru. I am from Parkpur and I love to play volleyball. Thank you. Good evening everybody. Myself Krish Kumar. I am from Mathura. My hobbies are reading novels, writing styles, watching sci-fi movies. Good evening everyone. My name is Akash Kumar. I am from district Shamli. My hobbies are playing football and traveling. Thank you. Good evening, respected sir, ma'am, and everyone present. Myself Jayan Mohan, and I am from Meerut. My hobbies are doing gym and playing online games. Thank you. Good evening, everyone. My name is Priyanshu Aryan. I am from Indore, and my hobbies are playing volleyball, traveling, and singing. Good evening everyone. Myself Naman Pratap Singh Tomar. I am from district Rampur and my hobbies are playing kabaddi and watching movies. Good evening, everyone. My name is Sachin Gamba. I am from Bareilly. My hobby is to play volleyball. Thank you. Good evening to everyone. Myself Saroj Kumar Verma and I am from Lakhimpur Kheri and my hobbies are watching wrestling and wrestling matches and spend some time with my family. Thank you.
Greetings to everyone present over here. Myself Nitin Kumar Sainik. I am from Dhanapur, Bijnor. My area of interest is writing poems and reading novels, etc. Thank you very much. Good morning everyone. Myself Ujjwal Singh. I am from Bijnor and I like reading and travel. Good evening to everyone. Myself Prashant Punia and I am from Meerut. My hobbies are playing cricket, exploring nature. Okay, thank you. Good evening to all. Myself Deepak Saxena from Harpabad and my hobbies are drawing and playing football. Thank you. Good evening everyone. Myself Shobhit Singh. I am from Aligarh and my hobbies are listening music and reading books. Thank you. Very warm good afternoon, Madam President here. Myself Harshit Kumar Kishore from district Aurelia and my hobbies are playing badminton and watching movies. Good evening everyone. Myself Priyanshi Varsha. I am from Bareilly. My hobbies are doing calligraphy. Good afternoon everyone. Myself from Gargar. I am from Brodh district Baggar. My hobbies are playing badminton and listening music. Thanks. Good evening everyone. My name is Nishant Nivedita and I am from Bareilly. My hobbies are painting, dancing and cooking. Good evening to our respected deans, sir, my professors and fellow batchmates. Myself Shivam Singer and I basically belong to Borough City but have been residing in Nalikar for the past decade. And my hobbies are playing football as well as I like to read non-fiction novels and sometimes in leisure time I like to make myself a snack also. Thank you. Good evening everyone. My name is Gaurav Yadav and I am from Saharanpur and my hobbies are photography and filming. Thank you. Good evening everyone. Myself Shalini Jindal and I am from Meerut and my hobbies are watching movies, cooking. Thank you very much. Good evening to everyone present here. Myself Pratham Verma and I am from City Bijnor. My hobbies include cooking, sketching and I also love to read science fiction novels. Thank you. Good evening to each one of you present here. My name is Anubhav Singh. I belong to city Jaunpur, which is also known as Shiraze. And my hobbies are singing and dancing. Thank you. Good evening. Myself Manish Kumar Singh from Kushinagar district and my hobbies is playing cricket. Thank you. Good evening everyone. Myself Atal Purwar. I am from Rampur and my hobbies are listening music and playing basketball. Myself Saurav Mate and I am from Aligarh and my hobbies is to play cricket. Thank you. I belong to district Muzaffarnagar and my hobbies are playing chess and cricket. We center now. Good evening everyone. This is Vaishnavi Upadhyay from Lucknow. I like spending a long time and exploring new things. I would like to share my strength and weakness as well. So my strength is that I am a very optimistic person and being an introvert, sometimes I really find it hard to say no to others. And that is my biggest weakness. Thank you and have a wonderful evening ahead. Everyone, my name is Varun Kumar. I am from Prayagraj. My hobby is playing cricket. Thank you. Good evening, respected teachers and my batchmates. Myself, Akansha. I am from Lucknow. I like traveling and exploring new places. I also have keen interest in sports. Thank you. Good evening everyone. Myself is Shyam Tyagi. I am from Bagpur. My hobbies are fine arts and painting. Thank you. Good evening to one and all. My name is Anjali Verma. I belong to Hapur. I spent my studying in Meerut. My hobbies are playing badminton, reciting Hindi poetry, and athletics. Thank you and have a nice day.
Good evening, everyone. Respected sir and ma'am. My name is Shard Chaudhary. I belong to Aligarh, and my hobby is listening to music and even producing. Thank you. Good evening, everyone. My name is Praveen Seth. I am from Noida, and I like making things. Thank you. Good evening, everyone. My name is Prashita. I belong to Meerut, and my hobby is painting. A very good evening to my respected teachers, my respected seniors, and my dear friends. I am Shivani Singh and I am from Noida, and my hobby is to doing workout as it gives me positivity and a lot of faith in myself. Thank you. Good evening, everyone. Myself Sachin Kumar. I am from Greater Noida, and my hobby is playing cricket and video games. Good afternoon, everyone. My name is Amit Kumar Singh. I am from Sambhal district, and my hobbies are traveling and reading books. And my favorite topic is Vedic studies. Thank you. Good evening to one and all present here. I am Ashutosh Singh from here, and my hobby is to play cricket and singing. Thank you. Good evening, everyone. Myself Shitish Singh. I am from Meerut. My hobby is traveling. Good evening, everyone. My name is Yashika Ratan, and I am from Meerut. My hobby is watching movies and exploring my interests. Thank you. Good evening, everyone. Myself Deepak Yadav from Sikar, Rajasthan, and my hobby playing volleyball and singing. Thank you. Good evening, everyone. Myself Amit Kumar. I am from Agra. My hobbies are playing cricket and watching movies. Thank you. Good evening, everyone. Myself Dori Chaudhary from Lord Krishna City, Mumbai, and my hobbies are traveling and watching K-dramas. Thank you. Good evening, everyone. Myself Sayumi Gupta. I am from Meerut. My hobby is painting. Thank you. Good afternoon, everyone. Myself Naresh Kumar Sar from Rajasthan. My hobby is playing cricket. Thanks. Good afternoon, all of you. Myself Vinay Chaudhary from Blanchard. My hobby is playing cricket and badminton. Thank you. Good afternoon to you all. Myself Ujjwal Chauhan, and I am from Below, and my hobbies are playing football. Thank you. बेशा ये पहले हुए उनके पंख बोलते हैं वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं वाह वाह वाह। चलिए इसी शायराना अंदाज को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी सचिन गंगवार को। सचिन गंगवार। मैं आपके समक्ष कुछ शायरी पेश करना चाहता हूँ। मेरे गुनाहों को इस तरह से धो देती है, मेरे गुनाहों को इस तरह से धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ये ऐसा कर्ज है मुझपर जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है मुझपर जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। चलती फिरती हुई आंखों से अदा
मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। कि न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब आता है ना मुसीबत का वक्त तो अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। मैं इसी से जान गया कि वक्त ढलने लगे, मैं इसी से जान गया कि वक्त ढलने लगे। मैं थक के छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे। मैं दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, मैं जो दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था। मैं जो गिर पड़ा तो सभी रास्ते बदलने लगे। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को नजर से यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत, मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत, मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जूलॉजी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, ये जूलॉजी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह ये सब जानना है मैं, लेकिन उसके घर का पता जानते हो। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो तुझे सबसे पहले हम मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजुर्ग भी पहले सब में खड़े मिलेंगे। अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। कि इल्म जब होगा तो किधर जाना है। देखा ना है सो जाना है रखती निशाने पे जाना, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा ना है सो जाना है रखती निशाने पे जाना, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। डोले डोले डोले
वैसा ही आज मैं श्याम अभिनीति में महसूस कर रहा हूँ। कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ को सिर्फ 10 मिनट में बयान करने आ रहे हैं निशान, त्यागी एंड ग्रुप। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। Ladies and gentlemen, stage is set, performers are set. The action begins in a very short moment. Are you ready? Are you ready, ladies and gentlemen? Pehli
long hair and lanky fellow. Stand there, teacher. No notice. Full and simple. You mother father's manners. This. Sir, वो बात ऐसी है. Speak English. This English coaching, not a local language. Actually, doctor said completely. Sorry, Kapeti.
तेरा है लास्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फंस आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं जाने देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं जाने तुझको तब बुलाए। मान्यवर ये कैसा हाल है जिसमें अपनों का बर्बाद हो तवक्कल है। खुदकुशी करने वाला इंसान खुद तो एक बार मर जाता है, लेकिन उसके यार दोस्त, उसके घर परिवार वाले लोग, उसके रिश्तेदार बार बार मरा करते हैं। हर वक्त खुद को अपराधी समझते हैं। मान्यवर मुझे विषय इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि भारत में पिछले वर्ष 12,000 से अधिक आत्महत्याएं छोटी मोटी अकादमिक मुद्दों के कारण हुई हैं। मान्यवर डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अगर उन तक ये सही समय पर मदद पहुंचाई जाती तो ये आत्महत्या रोकी जा सकती है। हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे आसपास मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त जो लोग हैं, हम उनकी बातें सुने और उनका हौसला बढ़ाएं। आत्महत्या अनचाही मौत नहीं, मनचाही मौत। और अंत में मैं गोपाल दास जी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ उगाने वालों, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नैन सेज पर खोया हुआ आग का पानी, और टूटना क्या है उसका जीव जाके कच्ची नींद जवानी। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी जूनियर्स हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक जीके टेस्ट लिया गया था उनका, और उन सबके मार्क्स हमने एक एक्सेल प्रोग्राम में फीड कर रखे। एंड अभी जो इन्होंने इंट्रो दिया है उन दोनों के मैशअप से, उन दोनों के एक वेटेज था, उन दोनों के मैशअप से हमने एक रिजल्ट बनाया है। और जितने बच्चे थे, जितने जूनियर्स थे, उसमें से 10 लड़के और 10 लड़कियां अब हमारे क्वार्टर फाइनल्स में आ चुकी हैं। सो मैं अभी लिस्ट अनाउंस करना चाहूंगा। सबसे पहले बॉयज की लिस्ट अनाउंस होगी। तो पहला नाम जिसके सबसे ज्यादा हम पाए हैं जीके प्लस इंट्रोडक्शन में, आशुतोष शर्मा। एक एक करके स्टेज पे आते रहिए। सेकंड नाम सरोज कुमार। नेक्स्ट शिवम सिंगल, नमन प्रताप सिंह तोमर, निशांत नंदीरत्ता, आशुतोष सिंह, शिवम भारद्वाज, अनुभव सिंह, रामपन चौरसिया, और लास्ट नाम सौरभ उपाध्याय। ये 10 बॉयज जल्दी से आगे यहाँ पे लाइन अप हो जाइए। और अब बारी आई गर्ल स्टूडेंट्स की। तो जो 10 नाम जो यहाँ पे गेम खेलेंगे वो है शिवानी सिंह, खुशी, डॉली, सहयोगिता, अंजलि वर्मा, वैष्णवी, आकांक्षा, याशिका, शालिनी जिंदल, कीर्ति एंड डिस्पोजेबल ग्लव्स जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वाले होते हैं वो सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उनके सामने कुछ बलून्स रखे होंगे। तो हमारे गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कैंडिडेट सबसे पहले अपने दस्ताने पहनेगा, सभी लोगों को सुनना है,
जो कैंडिडेट सबसे पहले अपने दस्ताने पहनेगा, इधर आएगा, 2 बलून उठाएगा, उनको बुला के एक डंबल का शेप बनाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा नेक्स्ट राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं। सो अब इनमें से नेक्स्ट राउंड में गर्ल्स आगे आ जाइए। इनमें से नेक्स्ट राउंड में 5 लड़के और 5 लड़कियां ही जाएंगे। क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर अभी सारे कैंडिडेट्स को डिस्पोजेबल ग्लव्स दिए जा रहे हैं और कैंडिडेट अब रूल्स एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके ग्लव्स फटे हुए हैं तो आप अभी चेंज करा सकते हैं। ऑलराइट, अभी कोई पहनेगा नहीं, सब अपने हाथ में रखेंगे ग्लव्स को। पहनिए मत, केवल अपने हाथ में पकड़ लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए बस। अंदर शेप चाहिए, दोनों बंधे में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। हम चेक करेंगे किसी की नॉट बांधी नहीं है, ऐसा नहीं आप नॉट बांधी करेंगे, आपको बोलिए गांठ बांधी है, गांठ बांधी है सब लोग, गांठ बांधी है सभी लोगों को। ऑलराइट, हाथ रेस करना है कंप्लीट बोलते हुए। ये गेम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे कोई अभी तक विनर नहीं आ पाया है। आप हाथ छोड़ो। हमारा पहला फाइनलिस्ट आ चुके हैं, रंगमंच जॉर्जिया। जल्दी जल्दी कम ऑन वेटरेनियन, आप हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ के निशान मत दिखाना। सेकंड कम ऑन गाइस, कम ऑन। हमने गेम इसलिए कम रखा था क्योंकि हमें 5 बच्चे फाइनल है। ओके, अंजलि वर्मा पहली बार कैंडिडेट क्वालीफाई करने के लिए, कीर्ति सेकंड, ओके, आशुतोष सिंह थर्ड करेंगे बॉयज की तरफ से, शिवानी सिंह और शिवानी सिंह थर्ड कैंडिडेट गर्ल्स की तरफ से। ओके, और कितने लोग बच गए आप? जल्दी जल्दी करो। ओके, गौरी चौधरी, नमन प्रताप सिंह फोर्थ कैंडिडेट, गौरी चौधरी, नमन प्रताप सिंह, चौथा तालियां। आप एक जगह बैठिए बस। म्यूजिक बंद करिए एक बार। तो जो फाइनलिस्ट हैं थोड़े से पीछे हो जाओ। ओके, तो फाइनलिस्ट नोट कर लीजिए एक बार। सारे फाइनलिस्ट इधर आइए। सेमीफाइनल। ओके, सो आप गर्ल्स हैं और आपके साथ और गौरव का दे दीजिए। ऑलराइट, बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जगह ले सकते हैं। ऑलराइट, ये बस छोटा सा कंपटीशन है, ठीक है, फन कंपटीशन है। तो Go
हेलो हेलो। बहुत ही अच्छा डांस। बहुत ही अच्छा डांस। इसके बाद कुछ ऐसी पेशकश है जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। कुछ लोग भूल के भी भुलाए नहीं जाते, कुछ लोग भूल के भी भुलाए नहीं जाते। एतबार इतना कि आजमाए नहीं जाते, हो जाते हैं दिल में इस तरह शामिल कि उनके ख्वाब भी दिल से मिटाए नहीं जाते। Wait, Anike. Our next performance is going to be a poetry. So everyone put your hands together and here's Taru Kaushik with his beautiful poetry. गुड इवनिंग एवरीवन। कहते हैं अंत से ही एक शुरुआत होती है। कॉलेज में आने पर हमारी भी एक नई शुरुआत है। बस उसी से रिलेटेड मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है कॉलेज का वो पहला दिन। कॉलेज का वो पहला दिन था। डर और घबराहट से भरा हुआ अपना दिल यूं तो एक्साइटमेंट के कपड़ों में लिपटा हुआ, यूं तो 100 चेहरे नजर आ रहे थे, कंफ्यूज से लेकर कॉन्फिडेंट तक, पर कोई अपना सा ना था। आपने क्यों ना हो, एक इंट्रोवर्ट के लिए एग्जाम जैसा मौका था। दीदी भैया बोलते थे स्कूल में, इधर तो आपसे सर और मैम बोलना था। हर बोल पर एक धक सी होती थी, धक वाली धक और धक वाली धक। नैनों से नैन मिले और मुस्कुराहटों का भी आदान प्रदान किया। कईयों ने चिंगारियां लगाई तो कईयों की तो माचिस करते। खैर, इन सब मौज मस्ती और बायोलॉजिकल फिनोमेना के बीच में कुछ जिम्मेदारियां भी थी। पढ़ाई और माँ बाप का डर नहीं, बल्कि उनके पैरों पर खड़े होने की जिद। धीरे धीरे वक्त बीता, अनजान चेहरे भी अब अपने से लगने लगे। बॉस से बॉस वाले सीनियर अब बॉस से भाई बन गए। नोट से लेकर डाउट तक, बुखार से लेकर दवाई तक, पहली बार इन्हीं पर तो जाती है। बस जाते जाते ये कहना चाहूँगा, बीते दिनों के साथ नॉस्टैल्जिया वाली किताब लिखी जा रही है, जिसके लेखक आप खुद हैं। और जब 56 की उम्र में तुम्हारी आंखों में धुंधलाहट होगी और मन में शायद ही खालीपन हो, तो बस एक बार किताब के पन्नों को पलट कर देख लें। कॉलेज का वो पहला दिन तुम्हारी चूड़ियों में भी मुस्कान है। चीज तैयार करनी, एक सेफ्टी पिन, देन रबर, सेफ्टी पिन, रबर, सेफ्टी पिन, देन ओके। जो 1 मिनट में सबसे लंबी लाइन तैयार करेगा, सेफ्टी पिन, रबर बैंड, सेफ्टी पिन, रबर बैंड अल्टरनेट बेस पे, वो 3 एंड 3 फ्रॉम बॉयज फाइनल राउंड के लिए चुना जाए। ओके, आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? आर यू रेडी गाइस? तो देख इस बात की only 45 seconds remaining. Only 20 seconds left. So, 3 seconds. Only 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपसे कुछ ही देर बाद
आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद सीधा फाइनल राउंड होगा। 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स। नमन प्रताप सिंह तोमर with 11 points. नमन प्रताप सिंह तोमर 11 points. रामन चौरसिया with 8 points. Congratulations. From girls, Priyanshi 15 points. Second, Anjali Verma 10 points. Third, Shivani Singh 8 points.
कृतानायकानं भगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वीक्षमूलं निरस्तारशूलं भजेऽहं भजेऽहं समस्तामरेशं द्विरेखाभवेशं जगद्विम्बलेशं विदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताभिलेहं सुवैकुण्ठमेहं भजेऽहं भजेऽहम् सुरालीवरिष्ठं प्रेयोमीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं भवां भोगिवीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकान्तं हरानरनागं विधानयागं गतारागरागं मुनित्रैर्सुगीतं सुरैर्सम्परीतं गुणौघैर्गणितं भजेऽहं 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 In a few minutes, it will be clear who is the Mr. President of today's evening Atithi Loksa Peace. Raman, you tell me, what is the importance of failure in life? What is the importance of failure in life? सर दरअसल फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमने बैक स्टेप जो गलतियाँ करी हैं प्रीवियस में जो गलतियाँ करे हैं उससे हमने कुछ सीखा नहीं, उसकी वजह से रिपीटेशन में आता रहता है और गाइडेंस हम जिससे भी लें टीचर्स, फैमिली, पेरेंट्स, भाई, फ्रेंड्स, उस इम्पोर्टेंस पे जिस लेवल पे उनको लेना चाहिए उनको उन्हीं से लेना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। How in modern days, how the technology is disturbing or destroying our personal life? In modern days, how the technology is destroying or disturbing our personal life? So the technology disturbing our personal life, like technology and mobile. अभी भी यहाँ पे मतलब सबके हाथ में फोन है और सब मतलब जैसे जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें ध्यान इतना नहीं दे रहे हैं, मतलब फोन में ज़्यादा बिजी हैं। तो इस तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी जो अपने आप प्रेजेंट टाइम पे हो, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हो, एक वर्चुअल लाइफ में जीते हो। और टेक्नोलॉजी मतलब जैसे फैक्ट्री में भी देखें तो बहुत टेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से मैन पावर जो है वो बहुत कम हो चुकी है और उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत मतलब मैन अभी इस टाइम पे रूटीन टाइम पे बहुत अफेक्ट कर रही है। थैंक यू। नमन, आपको कोई चीज अचीव करना है, वो डिफिकल्ट है या अचीव करने के बाद उसको मेंटेन अचीव करने के बाद मेंटेन करना। क्यों? अचीव करना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा उसे मेंटेन रखना है। डिटेल्स में बता रहा हूँ। उसे मेंटेन रखने के लिए अपना पूरा समय देना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। थैंक यू। प्रियांशी बात सुने। So you cleared your first year by online mode.
So whether this online mode of teaching is a boon for you or it is loss of our profession? According to me, it is loss of our profession because in our profession, practical work is much required. But due to online classes, we are not able to do practicals, which is a very big loss for us. Thank you. My question to you is, हिंदी में पूछूंगा कि आपको अपने अंदर कौन सी क्वालिटी लगती है जिसकी वजह से आपके जानने वाले आपके दोस्त बन जाते हैं, और वो कौन सा ऐसी चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं? ऐसा आपके अंदर क्या है कि आप उस क्वालिटी से अपने दोस्त बना लेते हैं, और वहीं पर एक दूसरा भी फैक्टर है जिसकी वजह से आपके दुश्मन भी बन जाते हैं? Thank you sir for asking me this beautiful question. Sir actually मैं बहुत नेचुरल हूँ, मैंने आज तक जो भी किया है उसमें कुछ भी फेकनेस नहीं है, और मेरे को इसीलिए जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे प्यार करते हैं और बहुत आसानी से मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में एक असली इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, हर जगह फेक लोग हैं, इसीलिए मेरे दोस्त मुझे आसानी से मिल जाते हैं। और दुश्मन इसलिए बनते हैं कि मैं फ्रेंड हूँ, मुझे जो जिसमें कमियाँ दिखती हैं, जो खामियाँ दिखती हैं, मैंने बताया था, और कहीं ना कहीं आजकल लोगों को ये पसंद नहीं आती, इसीलिए ऐसा होता है। पर मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग नेचुरल इज परफेक्ट है। थैंक यू। Okay, Shivani, Shivani, again congratulations to you also for being in the finalists of your batch. So मेरा आपसे जो प्रश्न है वो ये है कि आपके अभी तक के जीवन में जहाँ पर आप पहुँचे हैं, आपका सबसे उचित निर्णय और अनुचित निर्णय क्या और क्यों? आज तक का सबसे उचित निर्णय Should I repeat the question? और you get it क्या? आपने अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लिए, तो सबसे उचित निर्णय आप किसे मानते हैं और सबसे अनुचित निर्णय किसे मानते हैं और क्यों? तो सबसे पहले अनुचित निर्णय बार-बार ड्रॉप करना मेडिकल फील्ड में, दिस इज माय अनुचित निर्णय, एंड उचित निर्णय इज फाइनली वेटनरी ऑप्ट। Thank you guys. You can get your seat, please. And it is our pleasure, and let me announce this. It is our pleasure to be having with us Sir Dean of Biotechnology, and I would like to request to felicitate Sir with beautiful bouquet. Warm welcome, sir. Thank you very much. सचिव डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षक साथी और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के ही हैं ना, अभी आज फोर्थ ईयर भी है, सभी प्यारे छात्रों, मैं पहले तो जो थर्ड ईयर के छात्र हैं जिन्होंने ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, उनको पूरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम पेश किए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रही है। उस अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैं अपनी तरफ से उन्हीं को, सभी को जिन्होंने हिस्सा लिया, परफॉर्म किया, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्यारे छात्रों, मैं आपको एक
अपना बात जो अनेकों बार आपको कहता हूँ वही आज कहूँगा कि अपने बड़ों का आदर करें, अपने बड़ों की सभी अच्छी बातें माने। एक संस्कृत का श्लोक भी है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसेमिने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबला। जो अपने बड़ों के लिए अभिवादनशील होते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, उनकी विद्या बुद्धि यश और बल बढ़ते हैं और इसी से वो अपने बड़ों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं जूनियर स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने सीनियर साथियों का आदर करें, अपने गुरुओं का आदर करें, अपने बड़ों की अच्छी बातें माने और अच्छा व्यवहार, जो अच्छा बिहेवियर है वो दूसरों को अपना बना लेता है। एक 4 लाइन हिंदी की मैं आपको बताता हूँ। भाषा और व्यवहार से संबंध बदल जाते हैं, शब्दों की गणना से छंद बदल जाते हैं। यूँ तो जीवन में लगी रहती है धूप और छाव, हाथ की लकीरों पर लिखे स्वर के अनुबंध बदल जाते हैं। भाषा और व्यवहार से संबंध बदल जाते हैं। और अपना भाषा व्यवहार अच्छा रखें। प्यारे छात्रों में देखिए अब अपनी सोच होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, जब आप किसी अच्छे एक्ट पर क्लैपिंग करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और जब मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं वो उतना अच्छा नहीं लगता। मैं अभी जो 3rd ईयर के छात्र आए थे उनको भी मैं यही शर्त के साथ बात अपनी रखी थी कि वे कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकालेगा। जिसको मुंह से आवाज़ निकालनी है स्टेज पर आए, चाहे वो गाना गाए, जो जिस तरह का भी एक्ट करे वो स्टेज पर आके। पीछे से आवाज़ निकालने में पता नहीं कौन किस तरह की आवाज़ निकालता है और वो सारे कार्यक्रम को खराब कर देता है कई बार। इसलिए आप अच्छा कोई आपको लगे क्लैपिंग करें, खूब जोरदार से क्लैपिंग करें, लेकिन वो हा हुल्लड़ बहुत अच्छा नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम में रहें आप हंसें, लेकिन मुँह से अलग अलग तरह की आवाज़ें ना। दूसरा एक जो हमारे बच्चों में है भी, मैं आपके अनुशासन के लिए, अनुशासन में रहने के लिए प्रशंसा करता हूँ और आपके इस अनुशासनशील व्यवहार का पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा होती है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप अनुशासनशील रहें और अपना मेहनत करें। जो अनुशासनशील होता है, मेहनत करता है, वो बुलंदियों को छूता है और जो चाहता है वही प्राप्त करता है। आप सभी छात्र अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा निर्धारित करें और जैसा आप लक्ष्य बनाएं उस लक्ष्य के हिसाब से आप प्रयास भी करें, क्योंकि जो आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छा चाहें अपने लिए, लेकिन जैसा चाहें उसके अनुरूप आप प्रयास भी करें। ये आप ऊंची सोचते हो और प्रयास नीचा करें तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ऊंचा सोचते हैं और प्रयास भी आपका ऊंचा है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। और प्यारे छात्रों, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत ही टैलेंट आपके अंदर छिपा हुआ है, बस उसको जागृत करना है और सही दिशा में प्रयास करना है, तो आप जो चाहेंगे वो आप बनेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, हर एक इंसान के जीवन में 5 वर्ष का समय ऐसा आता है जो उसके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करता है। प्यारे छात्रों, ये समय तो 11वीं से चालू होता है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट होती है, 11वीं से लेके और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का जो समय है वो समय इतना इम्पोर्टेंट है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। इसलिए प्यारे छात्रों, ये समय आपके जीवन के निर्माण का समय है और इसको अन्यथा बिल्कुल न गवाएं। आप अपना पूरा ध्यान अपने जीवन निर्माण पे लगाएं। और मैं आपको हमारे छात्रों ने एक एक्ट किया था कि एक बच्चे ने ऊपर से कूद का हत्या का प्रयास किया
मैं आपको बताता हूँ कि समस्याएं बहुत आती है, लेकिन आज तक कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान न हो। समस्या के साथ साथ दूसरा शब्द समाधान भी है, और जो समस्या को समझे और थोड़ा सा पेशेंस रखे तो हर एक समस्या का समाधान होता है। आपके जो शिक्षकगण हैं, आपके जो गुरुजन हैं, वो उनके पास आपकी किसी भी तरह की समस्या है उसके समाधान के लिए वो सक्षम है। आप मेहनत करें, आप प्रयास करें, आपके गुरुजन आपके बहुत ही करीब से आपके साथ साथ हैं, और वो साथ साथ जो है आपको जिस तरह की समस्या, जिस तरह का समाधान चाहेंगे उस तरीके से वो समाधान करें। तो मेरा अंत में आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर और इतने अच्छे तरीके से बहुत कम समय में एक कार्यक्रम आयोजित किया। तमाम जितने भी फैकल्टी और शिक्षकगण और साथ साथ में जितने भी हमारे प्यारे बच्चे विद्यार्थी हैं, मैं सभी का इस कार्यक्रम में सबसे पहले इस कॉलेज की फैकल्टी होने के नाते और साथ साथ में इस विश्वविद्यालय का विस्तार होने के नाते सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ में मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजकों को, और जो भी इसमें फैकल्टी जैसे डॉक्टर रॉय, इसके अलावा डॉक्टर कुलदीप त्यागी जो प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूँ। अनुशासन की बात करें तो अनुशासन मैं समझता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे वेटनरी कॉलेज के विद्यार्थी बच्चे जितने अनुशासित हैं शायद किसी दूसरे महाविद्यालय के नहीं होंगे। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, और मुझे इस मन से कहने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी बहुत ही अनुशासित हैं। हमारे डीन साहब का, मैं अभी आके बैठा था तभी उन्होंने कुछ बच्चों को जो वॉलंटियर्स थे उनको बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने उनको कुछ निर्देश जारी किया कि भाई किसी तरह की हुटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और मैंने देखा कि हमारे बच्चों ने हमारे डीन साहब के निर्देशों का अक्सर से पालन किया। ये अपने आप में अच्छी बात है। जो भी यहाँ पर परफॉर्मेंसेज हुई हैं, तमाम विद्यार्थियों ने यहाँ पर अलग अलग एक्ट किए, बहुत सारे इवेंट इस टाइप के हुए। मैंने इसके अलावा भी अभी टेक्नोलॉजी कॉलेज का, PhD कॉलेज का और भी एक दो कॉलेजेस के मैंने इस तरह के फंक्शन अटेंड किए। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डाइवर्सिफाइड और बहुत ही बड़ा कई तरह से कुछ फनी एक्टिविटी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जैसे उसमें कुछ सेंसुअल एक्टिविटी है, कुछ मैसेज देने वाले एक्ट है। और एक दो कॉलेज में मैंने देखा था कि मैं हालांकि इस मन से इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कुछ उड़ता थी और लोगों के वहाँ पर विद्यार्थियों के एक्टिव में, बट हमारे ऐसी कोई तरह की चीज़ें नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच में हमारे निदेशक शोभ डॉक्टर सिरोही साहब आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि भाई इनका भी जो है बढ़िया से स्वागत कीजिए गर्म जोशी के साथ। और अगर बुके अवेलेबल हो तो बुके देकर सर का जो है स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा उसका नाम है। और इसके अलावा कोई गाना गाया था, तो मैं उसके ऊपर भविष्य की कामना भी करता हूँ उसके साथ साथ। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को फिर से बधाई देता हूँ। और अनुशासित रहिए, पढ़िए अच्छे से। बाकी ऐसा एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत सारे अभी देखिएगा कल हमारा कंपटीशन था, तो उसमें 7 लोगों को मेडल दिए गए। चांसलर गोल्ड मेडल भी हुआ है, इसके अलावा एक गोल्ड मेडल, और इसके अलावा जो है सिल्वर मेडल और ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो भी एक एक्टिव पार्ट है आपका, उसके साथ साथ में वो फिजिकल एक्टिविटीज है, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। बेहतर है कि अगर मान लिया आपको मेडल की रेस में जाना है, तो वो फिजिकल एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उसमें यही इस तरह की सब चीज़ें आती हैं। तो मैं फिर से सब लोगों को, सारे विद्यार्थियों को, इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूँ। और साथ साथ में सबको उनके
मैं बहुत ज़्यादा आपको ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि जो सभी नए स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मुझे पता लगा कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स वेलकम कर रहे हैं, तो मैं सभी की तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से आप सभी नए स्टूडेंट्स का इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उद्देश्य आप यहाँ लेके इस विश्वविद्यालय में आए हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो आप अपने हार्ड वर्क से और अपनी मेहनत से उनको पूरा करेंगे। और जैसा मैं कई बार कई कार्यक्रम में कहता हूँ और आपको मालूम भी है, शब्दों को मैं फिर से यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हमें बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही एकाग्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और जैसा आप सभी को पता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। अगर जीवन में हमें कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत के अलावा सफलता का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं। तो हमें ही उस पर चलते रहना है। और जो आप सपना इस विश्वविद्यालय में लेके आए हैं, जो सपना आपके पेरेंट्स का है, वो आप उसे जरूर साकार करें। और इसी के साथ साथ आपको ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। Faculty colleagues from College of Veterinary and Animal Sciences, and dear students. First of all, I apologize कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला हुआ, कुछ ऐसे काम थे, ऑफिशियल काम थे, जिसकी वजह से लेट हुआ, इसलिए मैं लोग किसी से पहले भी कह चुका था, लेकिन ये श्योर किया था कि आपके बीच में आऊँगा जरूर। So I am here with you. सबसे पहले मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होकर अपने सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टीम के कोविड के बाद शायद पहली बार इस तरह की गैदरिंग में इकट्ठे हुए हैं, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम आया। जैसा कि अभी हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एज ए DSW आई एम हैप्पी टू से दैट कि इस कॉलेज के विद्यार्थी, इस कॉलेज के विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स की ओवरऑल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो अपने DSW सेक्शन में जाते हैं, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ डूइंग दैट, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, चाहे वो भी कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो मैंने अभी कल ही आपकी एक मैगजीन युवा अभिव्यक्ति रिलीज हुई, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम विश्वविद्यालय को आगे लेकर के बढ़ेंगे। और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात मैं इसलिए करता हूँ कि पढ़ते सब बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि जो मेरिटोरियस बच्चा है वही लाइफ में सक्सेसफुल। वर्तमान परिवेश में हम लोग देखें तो मेरिट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रह रही है। इम्पोर्टेंस है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपका टीम वर्क कैसा है। और अगर आप सब लोग इन चीज़ों में डिसिप्लिन के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो ये सारी व्यवस्था आपके पास होती हैं और उससे एक अच्छे नागरिक बन करके आप लोग आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा याचना करते हुए कि देरी से आपके बीच में उपस्थित हुआ, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया। और आप लोगों के थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर के भविष्य हेलो, धन्यवाद सर। तो अब दिस इज टाइम फॉर द रिजल्ट्स, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो सबसे पहले मैं हमारे फाइनलिस्ट्स को
फाइनलिस्ट आए रामपन चौरसिया। इंतजार था वो आपसे कुछ ही मिनटों में खत्म होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अनाउंस करना चाहूंगा जो हमारे रनर अप हैं, और रनर अप के नाम हैं प्रियांशी वार्ष्णेय एंड नमन प्रताप सिंह तोमर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल डीन सर कि प्लीज आप स्टेज पर आकर स्टूडेंट्स को आशीर्वाद प्लीज प्लीज। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। फोटो सर। Congratulations to Naman and Priyanshi. And now, our Mr. Chairman of today's Everything Coming Niti 2020 is Raman Chaurasia. And I would like to request our Honorable DSW sir to please come on the stage. Mr. Chairman and Mr. Lee. Any guest audience? I would like to request Honorable Dean Sir, Dr. Ravindra Kumar sir, please be on the stage. Thank you, sir. I would like to request to please be on the stage, Dr. Rachna Marma, please.